چلیے بسم اللہ. تو پہلا سوال اس کا زبیر بھائی کا کریں گے کہ پوسٹ مارٹم کے بارے میں، اور ایکچولی جو ہے اپنے کلچر میں، اپنے معاشرے میں پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے لوگ، اور جو ہے کچھ بھی ہو جاؤ، کیسا تو بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا تو پولیس کو آنے نہیں دیتے، اور گورنمنٹ کے رولز ہے کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، خصوصاً ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے. مگر اپنے والے کیا کرتے ہیں، تھوڑا پیسے ویسے دے دے کے پولیس والوں کو نہیں کرتے، ہم ان کو چین سے رہنے دو، جو ہو گیا، اس طریقے سے وہ لوگ وہ کرتے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیوں اپنے پاس پوسٹ مارٹم کو پریفر نہیں کرتے؟ ایک تو جو ہے پوسٹ مارٹم میں تھوڑا سا جو ہے باڈی کو تھوڑا کٹ کرتے، وہ لوگ کاٹتے تھوڑا، اور جو ہے اس سے باڈی کو جو ہے قیامت کے دن صحیح کٹ گیا، اور تو قیامت کے دن صحیح شکل میں باڈی نہیں آئیں گی بول کے ایک حدیث ہے کہ وہاں پہ اندھے رہیں گے، اور جو لوگ یہ حرکتیں کرے وہ لوگ جو ہے آنکھیں نہیں ہوں گے، آنکھیں بغیر آنکھوں کے اٹھائے جائیں گے. تو یہ لوگ اس حدیث کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرے کہ بغیر آنکھوں کے اٹھائے جانا، اگر آنکھ ڈونیٹ کر دیے یا کسی ریزن سے پوسٹ مارٹم میں آنکھ ڈیمیج ہو گئی یا کچھ ہو جائے تو ہم لوگ قیامت کے دن اندھے پیدا ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں رہیں گا، بلکہ تھوڑی سی کراہیت ہے اپنے پاس. وہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے، مگر حالانکہ اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. دوسری کئی حدیثیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جانے کے بعد میں جنگ میں باڈی کو تکلیف پہنچانا یا بے عزتی کرنے کے خلاف تھے. فار ایگزامپل، آپ کسی سے کوئی آپ کو بہت ستائے، آپ کو بہت دشمنی ہے ان سے، اور جو ہے جنگ میں آپ کے سامنے آ گئے، اور جو ہے آپ کو موقع ملا ان کو قتل کر دینے کا، اور اس کے بعد میں بھی غصہ کم نہیں ہوتا تو کچھ اور وہ لاش کو لات مارتے. پہلے کے زمانے میں جہالت بہت تھی، 1400 سال پہلے وہ لاش کو لات مارتے تھے، بے حرمتی کرتے تھے. اور جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست تھے، چچیرے بھائی ان کے حمزہ بول کے، جو سپہ سالار تھے مسلمانوں کے، ان کو جو ہے دشمنی میں قریش کی ایک عورت تھی، ابو سفیان کے وائف تھے ہندہ بول کے، انہوں بہت نفرت کرتے تھے کیونکہ پہلی کی جنگ بدر میں ان کے بھائی باپ کو ہرا دیے تھے اور قتل کرے تھے حمزہ جنگ کے دوران. تو وہ نفرت دل میں رکھ کے حمزہ سے بدلہ لینا بول کے انہوں ایک خاص حبشی افریقہ کے غلام کو لے کے آئے جس کا نشانہ سپیئر کا بہت بہترین تھا. تو اس کو پیسے ڈال کے لے کے آ کے جنگ احد میں جو ہے اس کو بولے تم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، منہ بولے پیسے دیتی ہوں، بس وہ سپیئر جو ہے حمزہ کے اوپر مارنا ہے بول کے. اور وہ حبشی جو ہے تو اس کو کیا معلوم ہے، اس کو پیسے دیے تو انہیں ایکسپورٹ تھا انہیں پھینکنے میں دور سے، تو انہیں ادھر ادھر بچتے دیکھتے موقع ملتے پھینکا، جس کی وجہ سے حمزہ کا جو ہے انتقال ہو گیا. بہت بڑے صحابی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے، چچا ہوتے تھے ایکچولی دور کے، مگر سیم عمر کے تھے. تو دودھ پلائے سو عورت سیم تھی، تو دودھ کے بھائی بھی ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے، اور انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ تلوار اٹھاتے تھے. تو اس طریقے سے محبت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد میں جو ہے ہندہ اور ایک قسم کھائی تھی کہ میں ماروں گی بھی، اور ان کے دل کاٹ کے ان کا جو دل رہتا نا، وہ دل کو میں چباؤں گی، کھاؤں گی بول کے اس کا قسم کھائی تھی انہیں، اور ویسی کری. جنگ میں سب پریشان تھے، انہیں موقع کا فائدہ اٹھا کے جو ہے سپیئر والے کو لے کے آ کے حبشی کو وہ پھینکنے لگائی، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اور وہی موقع میں چھری لے کے کاٹ کے دل باہر نکالی، انتقال کے بعد میں نکال کے چبانے کی کوشش کری. تو یہ اس کے بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ ایک تو شہید ہو گئے، اس کا غم بہت تھا،
ऊपर से बॉडी को इस तरीके से काटे, तो वो उनको बहुत तकलीफ हुई और बोले कैसे लोग हैं ये, कुरैश कैसे हैं, ये मेरे लोग हैं जो मरने के बाद में लाश को भी जो है इज्जत नहीं दे रहे। तो उसमें नेगेटिव बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश की तो इज्जत करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए बोल के। तो उसको जो है उलमाए जो इस तरीके से समझे कि आजकल जो पोस्टमार्टम होता है उसमें भी तो काटते बॉडी को, और इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करे लाश को काटने से, तो इसलिए पोस्टमार्टम नहीं करने देते। मगर हदीस गलत अंडरस्टैंड कर रहे। हदीस सही है, मगर हदीस उस काटने के ऊपर बोल रही जो जंग के दौरान बेइज्जती या बेहुरमती के लिए या तकलीफ पहुंचाने के लिए या ह्यूमिलेट करने के लिए जो की जाती, उसकी बात कर रही है। तो बाज़ाब्ता कोई मर्डर हो गया, कोई जहर से मार दिए, तो डॉक्टर पहचानने के लिए पोस्टमार्टम करते कि पानी में डूब के मरे, इसको गला दबा के मारे, फिर कैसा हुआ, ताकि मर्डरर को पकड़ना है, या नहीं तो कुछ और भी रीजन हो सकता है, जानबूझ के मार के फिर मर्डर के जैसा उसको बना दिए होंगे। तो डॉक्टर के तहत में जहाँ पुलिस शक में आती, वो लोग पोस्टमार्टम करा देते। तो उसके अच्छे नजरिए से काट रहे वो लोग, ऐसी बेइज्जती के लिए नहीं काट रहे। उसको और इसको लिंक नहीं कर सकते। हदीस को इसके लिए एज इट इज अप्लाई नहीं करना चाहिए। हदीस को उसके पस मंजर और उसके माशरे के सिचुएशन के हिसाब से अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके वजह से हमारे सोसाइटी में पोस्टमार्टम की तरफ नेगेटिव नजर से देखते, अरे आदमी मर गया, कम से कम उसको चैन से मरने दो, उसको काटना जरूरी है कि आप पैसे खिला दे के पुलिस वालों को भेज दो, ऐसा कल्चर हो गया। हालांकि वो एक गवर्नमेंट प्रोसेस है जिसमें आपको नहीं मालूम होता, मगर पोस्टमार्टम करे से डॉक्टर पहचान लेता कि इसको किस तरीके से मर्डर करे, या मर्डर था या नहीं था। तो वो एहतियात गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी चीज है, इसमें बेइज्जती नहीं है। और दूसरी चीज भाई, मरने के बाद में जो है आदमी को जिस्म की तकलीफ मालूम नहीं होती उसको, क्योंकि जान वैसे भी चले गई, रूह चले गई, पेन सेंसेशन चले गया। तो इस तरीके से वो बेहुरमती है। वो हमजा के साथ ऐसी छे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करे। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमजा का पोस्टमार्टम पसंद नहीं करे, क्योंकि वो औरत निकाल के बदले में बेहुरमती के लिए कलेजा चबाने के लिए करी थी। लिटरली कलेजा मुंह में काट के मुंह में रखी थी उन्हें। ये और बात है कि बाद में मुसलमान बन गए और नेक बन गए औरत, और अल्लाह ताला कैसे-कैसे लोगों को भी हिदायत देता। और बहुत अफ़सोस, ज़िंदगी तमाम अफ़सोस थी। और वो जो आदमी स्पीयर मारा, उन्हें भी बाद में मुसलमान बना। उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त नाम था उसका। और देखिए कैसे लोग, कितने बड़े गुनाह और इतनी तकलीफ हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हमजा का इंतकाल हुआ। और कुछ ऐसे रिपोर्ट्स में आता कि बहुत बड़े सहाबियों में थे, और अगर हमजा जिंदा होते तो शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खलीफा बना सकते थे, या खलीफा बनने में उनका भी नंबर 1 नाम रह सकता था। तो अबू बकर और उमर के लेवल के थे हमजा, मगर बहुत जल्दी इंतकाल हो गया। बहुत कम इस्लाम की खिदमत हुई उनकी, मगर उनका दर्जा इस तरीके से था। मगर दर्द तो तकलीफ होती थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ह्यूमन नेचर है, वो भी एक इंसान है, वो भी जज्बात महसूस करते। तो इसके लिए जब वो हबशी जो मुसलमान बन गया, मुसलमान बनने के लिए आया, तो उसका हाथ हाथ में लेके उसको माफ करके मुसलमान बनाए। मगर एक गुजारिश करे उसको कि तुम मेरे एकदम सामने मत आया करो। तुमको देखता हूँ तो मेरे को मेरे भाई, मेरे चचा हमजा याद आते। और हमजा को असदुल्लाह बोलते हैं इस्लाम में। लायन, शेर थे वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। तो मेरे को उन्होंने याद आ जाते, तो मेरे को तकलीफ होती, मेरे को तकलीफ हो जाती, वो मेरे असद वो हमजा याद आ जाते बोल। तो उन्होंने सामने नहीं आए वो हबशी। और उसके बाद में उन हबशी इतना अफसोस करते थे कि मैं इस्लाम के इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, इतनी बड़ी शख्सियत का को शहीद करा, तो मैं भी इस्लाम के लिए मेरे से कोई बड़ा काम लेना बोल के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में अबू बकर के खिलाफत के टाइम पे एक आदमी था जो अपने आप को पैगंबर बना लिया था अरबों में, और अपने आप को पैगंबर डिक्लेयर करा था। और एक औरत भी थी, उन्हें भी अपने आप को पैगंबर डिक्लेयर करी। दोनों जो है बहुत बड़ा मूवमेंट पैदा करे और इस मुसलमानों को बहुत परेशान करे, क्योंकि एकदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और उसका उन्हें फायदा उठाया। और लोग कंफ्यूज हो गए, उन्हें भी, मेरे को भी कुछ वही आती, कल जो आयत पढ़ रहे थे ना, वही आती, जी। उसके जैसा उन्हें भी यूज कर लिया था। और मुसलमान
کئی مسلمان کنفیوز ہو گئے تھے اور کئی صحابیاں اس کے پیچھے جا کے اس کو پیغمبر بول دیے تھے. اس کے بعد میں ابو بکر جو ہے یہ جھوٹے پیغمبروں کو ختم کرنا بلکہ آرمی بھیجے, مگر انہیں اس کی آرمی بھی بہت اسٹرانگ تھی اور انہیں بہت ہی اس کے لوگ قبیلے والے اس کو بہت حفاظت سے رکھے جنگ میں. تو جب یہ جو حبشی رہتے انہوں اپنا سپیئر لے کے طریقے سے جا کے اس کے پر پھینکتے اور وہ نشانہ انہوں چوکتے نہیں, جس کے وجہ سے وہ آدمی مر جاتا اور آخر میں موومنٹ ختم ہو جاتا. مسلمان صحابیوں کو اپنی غلطی پتہ چلتی, اس کے بعد میں پھر دوبارہ مسلمان بنتے وہ پورا قبیلہ, اور پھر بعد میں اسلام میں بہت محنت کرے ماشاءاللہ وہ لوگ. تو یہ سب چیز سے پتہ یہ چلا کہ وہ انسان جو اتنا بڑا گناہ کرے, ہندا جو ابو سفیان کے بیوی تھے, اور یہ جو حبشی جو قتل کرے, جو اتنا غلط کام کرے, شہید بھی کرے اور ان کا کلیجہ بھی نکالے, ویسے لوگ بھی مسلمان بنے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیا, اللہ تعالیٰ ان کا اسلام قبول کرا, اور اسلام میں آنے کے بعد میں اسلام کے لیے بہت بڑے کام کرے. تو اس سے ایک سائیڈ میں ایک یہ بھی پوائنٹ نکلتا کہ ہم کسی کو یہ نہ سمجھے کہ یہ اتنا دین میں گیا گزرا ہے یا انہیں بیکار آدمی ہیں, انہیں کیا کریں گا, انہیں دین میں کیا محنت کر سکتا, اس کو دین کئی کو بولنا, اس کو کئی کو قرآن سمجھانا, انہیں تو جاہل ہے, انہیں تو ویسا ہے بول کے اپن سمجھتے. مگر اللہ تعالیٰ کس کس کو بھی دین کی دعوت دیتے اپنے کو نہیں معلوم ہوتا. جب حمزہ کے قاتل عورت جو اتنی پلاننگ اور پلاٹنگ کے ساتھ شہید کروا کے اتنا گندا کام کری تھی, جب انہیں مسلمان بن سکتے تو کوئی بھی مسلمان بن سکتا اور دین کے لیے محنت کے کام کر سکتا. تو یہ انسیڈنٹ کی وجہ سے کئی علماء جو ہے پوسٹ مارٹم کو کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے, پوسٹ مارٹم پسند نہیں کرتے, اور جو ہے جتنا ہو سکے بچانے کی کوشش کرتے اپنے عزیزوں کے ساتھ. اور ایک ایموشنل اینگل بھی بن جاتا کہ بھئی مر گیا سو مر گیا آدمی, اب چھوڑو اس کو, کئی کو اس کو کاٹم کوٹی کرنا چاہ رہے, کئی کو اس کو تکلیف دینا چاہ رہے, بلکہ بھی ایموشنل چیز بن گئی. تو وہ ایکچولی اسلام میں اس کا کوئی ویسا پرابلم نہیں ہے. اگر پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہے اور آپ کے عزیز کو کوئی قتل کر دیا تو آپ جاننا چاہیں گے کہ کون کرے, پولیس کے انویسٹیگیشن میں ہیلپ ہو جاتی. کئی بار تو جو ہے کئی لوگ پکڑے گئے پوسٹ مارٹم کی وجہ سے, ٹائم کی وجہ سے, کتنے گھنٹے پہلے انتقال ہوا, کس طریقے سے انتقال ہوا, نشان یا ناخن کے نشان وہ نکال کے ڈی این اے کے ساتھ لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال کے انصاف دلائے. تو پوسٹ مارٹم کئی جگہوں پہ بہت اچھا کام کرتا. تو مسلمان جو ہے اننیسرلی اللاجیکلی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اسلام میں اس کا کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے اس کے بارے میں. تو یہ تھا سوال کا. اس کا کوئی اور کچھ پرسپیکٹو لینا چاہ رہے, کوئی ڈسکشن کرنا چاہے تو پلیز بولیے, نہیں تو پھر دوسرے سوال. یہ اس میں ایک ہی حدیث ہے یہ پوسٹ مارٹم کے تعلق سے, اور کوئی بھی نہیں ہے؟ اور کوئی دلیل تو نہیں ہے ان لوگوں کی, بس یہ اسی کو مس انڈرسٹینڈ کرتے وہ لوگ. اور وہ جو قیامت کے دن اندھے بن کے اٹھے جائیں گے تو اس کے وجہ سے ارے پوسٹ مارٹم میں آنکھ چلی جائیں گے یا ڈیمیج ہو جائیں گے, قیامت کے دن اندھے پیدا ہوں گے. وہ اندھے اس طریقے سے نہیں ہیں جو دین کے خلاف کام کرے, دین کے معاملات میں اندھے تھے, وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھے اٹھائے جائے گا. محاورتن ہے, اس کو اس کے ساتھ نہیں اپلائی کر سکتے پوسٹ مارٹم کو. آرگن ڈونیشن کے ٹائپ پہ بھی میں بات کیا تھا, یہ سیم ٹاپک کو میں ڈسکس کرا تھا, مگر آرگن ڈونیشن کے پرسپیکٹو سیم وہی, تھوڑا سا سملر بھی ہے اس کا جواب اور اس کا جواب. جی اچھا. تو کوئی اس کے پر اور کوئی ڈسکشن ہے, کسی کے کوئی ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے تو پلیز, کوئی اور نظریات ہے تو پلیز شیئر کیجیے, نہیں ہے تو پھر دوسرے سوال پہ جائیں گے. اب دوسرا سوال کاشف, ہاں ٹھیک ہے. کاشف بھائی کا سوال ایکچولی پہلے بھی کئی بار ٹکڑوں میں ٹاپک کے پر بولا گیا تھا. سوال تھا کپڑوں کے بارے میں کہ کپڑے کیسے ہونے چاہیے, اسلامک ڈریس کیا ہے, توب کی کیا اہمیت ہے, ٹوپی اور یہ جو سنت لباس ہے اس کے اوپر کیا بولا جاتا. اس کے اوپر پہلے بھی میں بولا ہوں گا, مگر چلیے تھوڑا سا, اس لیے میں اس کو ڈیپتھ میں نہیں جا کے تھوڑا سا میں شارٹ میں جو ہے اس کو ٹچ کرتا ہوں. صرف کاشف بھائی کے حدیث کے پرسپیکٹو سے بات کرتا ہوں. اب جنرل کپڑے کیا ہے اسلام میں, اس کے وجود کیا ہے, اس کا تھوڑا سا میں جنرل بولوں گا, ڈیپ نہیں جاؤں گا, پھر وہ لمبا ہو جائے گا. اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو پھر اس کو میں ایکسپینڈ کروں گا, نہیں ہے تو میں شارٹ پہ رکھوں گا اگر کوئی سوال نہیں ہے تو. اسلام میں کپڑوں کا ایک ہی چیز ہے, حرام حلال صرف دو طریقے سے ڈیفائن کیے گئے. پہلی چیز
औरत मर्दों के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मर्द भी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और दूसरी चीज जो है, कपड़े रिवीलिंग नहीं होनी चाहिए। मर्दों को जो है नाप से लेके घुटने तक कवर होनी चाहिए, इसको सतर बोला गया है। और औरतों को जो है चेहरा और हाथ के अलावा बाकी सबको चेहरा, हाथ और पैर, पैर मतलब वो घुटने के नीचे नहीं, टखने के नीचे, वो चीजें एक्सपोज कर सकते हैं, बाकी की पूरी चीज कवर होनी चाहिए। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है, कपड़े बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, कपड़े ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, कपड़े औरतों के लिए खुसूसन रिवीलिंग नहीं होनी चाहिए, बुर्खा ढीला होना चाहिए। ये इस्लाम में, हदीसों में और आयतों की तफसीर में मिलता है इस चीजों को, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ममानियत करे थे। और जो है ये हदीसों में तो क्लियर मिलता। अब इसके अलावा, ये जो रूल्स के अलावा आप कुछ भी पहन सकते एज लॉन्ग एज ये रूल्स को नहीं तोड़ते। जैसा साड़ी है, आप साड़ी पहन सकते मगर फिर पेट का हिस्सा छुपना पड़ता फिर। हाँ, औरतों में है तो कोई मसला नहीं है, घर में है, शौहर के सामने है, बच्चों के सामने है तो साड़ी पहन सकते हैं। मगर फिर बाहर वाले आ गए तो जो है फिर आपका पेट छुपना चाहिए। साड़ियों में, हिंदुओं के साड़ियों में देखते हो लोग, पेट एक्सपोज होता। साड़ी चीज ही वैसी है, इसलिए लोग क्या करते, मुसलमाना के ज्यादा शर्ट शलवार पहनना पसंद करते, तो वो हिस्सा कवर हो जाता। तो कवरिंग के ऊपर है, ड्रेस के ऊपर। अब ये तो जनरल है, और इसके अलावा जो चीज नहीं बोली गई वो आपके लिए हलाल है, तो कोई इस पे मसला नहीं है, क्योंकि इस्लाम में तो इस चीज पे एम्फेसाइज किया। एक चौथा पर्सपेक्टिव जो बहुत कंफ्यूज करता लोगों को कि मर्दों के ताल्लुक से, कि हदीस में, जैसा काशिफ भाई हदीस पेश करे थे, कि एक हदीस है कि चंद लोगों के साथ अल्लाह ताला रहम का मामला नहीं करेंगे, रहमत की नजर से नहीं देखेंगे, उनके गुनाह माफ नहीं करेंगे, उन पे रहम व करम नहीं करेंगे। वो क्या है बोले तो उसमें एक कैटेगरी ये है, जो मर्द वे टखने से नीचे अपने कपड़े रखते। मगर एक्चुअली ये लिटरली नहीं लेना चाहिए, ये एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये कपड़ों का फैशन था, कि जो लोग करोड़पति और बड़े रॉयल फैमिली के रहते, उनके कपड़े अलग रहते थे, ताकि कपड़ों से पहचाने जाना। और वो कपड़े क्या थे, वो कि जो अकड़ और निशानी और तकब्बुर के थे, जो कपड़े घुटने के नीचे रखते थे, वो स्टाइल था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने के हिसाब से ये फैशन के खिलाफ थे, कि ये तकब्बुर की निशानी है, तुम नहीं करना, क्योंकि ये जमाने में ये तकब्बुर की चीज मानी जाती। तो फौरन अबू बकर खड़े हुए, उन्होंने बोले, मैं नमाज के टाइम पे मैं तो तकब्बुर नहीं करता हूँ, मेरे को तो नहीं है, मगर मैं दुबला इंसान हूँ और मैं टाइट नहीं बन सकता हूँ, तो नमाज के टाइम पे या उठने बैठने के टाइम पे मेरा जो है लुंगी जो पहनते थे वो घुटने के नीचे चले आती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं, तुम्हारे को अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो अकड़ और तकब्बुर करते, और वो जमाने में अकड़ और तकब्बुर की निशानी थी, इसके लिए ममानित की जाए। अगर वो जमाने में रहते हुए भी अबू बकर को इजाजत दी गई, आज के जमाने में 2020 में कपड़े अगर जो है पैंट नीचे तक आ रहा, तो वो एक्चुअली कोई अकड़ की निशानी नहीं है। तो 1400 साल पहले के कपड़ों के फैशन और उस जमाने की अकड़ की निशानी जो कपड़ों में थी, वो आज 2020 में अप्लाई नहीं होती। हाँ, क्या अप्लाई होती, हदीस को फिर किस तरीके से लेना, क्या हदीस को रिजेक्ट कर देना? नहीं, हदीस को रिजेक्ट नहीं करना। हदीस क्या बोल रही कि अल्लाह ताला फरमा ले, जो तकब्बुर के कपड़े पहन के अकड़े दुनिया में और अकड़ के तकब्बुर के कपड़े पहन के चले, उनको हम रहम करम क़यामत के दिन नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में तुम बहुत तकब्बुर करते थे, तुम्हारी ज़बान से तकब्बुर था, तुम्हारे कपड़ों में तकब्बुर था, तुम 50,000 का सूट पहनते थे अरमानी का और तकब्बुर करते थे और गरीब लोगों को नीचे नजर से देखते थे, तुम 5 लाख का गोल्ड ज्वेलरी पहनते थे तकब्बुर से, और जो नहीं है सो लोगों को गिराते थे। तो ये पूरे लोग इस कैटेगरी में आते, इस हदीस में आते। इस हदीस को सिर्फ और सिर्फ नीचे कपड़ों पे महदूद नहीं करना चाहिए, हदीस का मीनिंग समझना चाहिए, अल्लाह का मकसद क्या है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। अकड़ और तकब्बुर के कपड़ों को अल्लाह ताला बहुत ही नापसंद कर रहे। हम इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला हमारे कोई महंगा शेरवानी बना दिए, कोई 50,000 की शेरवानी बना दिए, चलिए 10,000 की शेरवानी हमेशा कोई लेते, मगर आपको बहुत अच्छा मौका मिला, 50,000 की शेरवानी है, मगर ये पहनते वक्त अकड़ नहीं करना चाहिए। रादर उसके बदले में जो है सादगी के साथ और जो है खुशी होनी चाहिए
कि अल्लाह ने हमें एहसान दिया, अल्लाह ने हमें इतने अच्छे कपड़े पहनाए, इतनी अच्छी गोल्ड ज्वेलरी पहनाए, तो उसका शुक्र अदा करके बगैर तकब्बुर के साथ पहनना चाहिए। जिस मोमेंट उसमें तकब्बुर आ गया और अकड़ आ गई और बाजू लोगों को गिरा रहे हम, और वो अपने अंदर शान की फीलिंग आ गई, हालांकि हम जबान से भी नहीं बोल रहे, तो डरिए इस हदीस से। तो ये हदीस आपको अप्लाई होती है और आपको क़यामत के दिन अल्लाह ताला रहमत की नजर से नहीं देखेंगे, क्योंकि आप इस दिन अपनी जवानी में आप कोई शेरवानी या गोल्ड ज्वेलरी पहन के अकड़े थे। तो वो हदीस को इस तरीके से लेना चाहिए। मगर आप मालूम है कई उलमा तो लिटरल लेते, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिया बस लुंगी नहीं पहनना, वो नहीं पहनना बोल के हंगामा मचा देते। मगर वो लोग उस लिटरल सेंस में लेते, मगर उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं करे। उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, क्यों रसूल अल्लाह को नहीं पसंद है, उस पर रिसर्च नहीं करे। बस हम पढ़ लिए बोलते रहे, हो गया पढ़ लिया खत्म, ये टाइप क्या हो गया। लोग रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुसूसन इंडियन स्कॉलर्स अरब के कल्चर को, 1400 साल पहले के अरब के कस्टम्स को ये अंडरस्टैंड नहीं कर सके, इसलिए वो लोग लिटरली कॉपी कर लिए उस चीज को और उसके मेन मीनिंग को छोड़ दिया और खाली लिटरल सेंस में पकड़ लिए। तो ये हदीस की ये तफसीर थी। काशिफ भाई ठीक है, कुछ सवाल है? नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, आपको बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। ठीक है। तो ये next- इसी को एक लेके मैं वो बोलता हूँ कि ये नमाज पढ़ते जब टखनों के ऊपर वो पंचे चढ़ा देते ना, हाँ वही तो उसी गलत है वो, उसको लिंक कर दे के अरे कम से कम दिन तमाम तो भी नहीं कर सके, कम से कम नमाज के टाइम पे तो भी ये हुक्म मान लेंगे बोल के जल्दी जल्दी उल्टे कर लेते, अजीब दिखते। हालांकि नमाज के टाइम पे कपड़े मोड़ना अलाउड नहीं है। तो अच्छा इसका भी जी हाँ, सॉल्यूशन मेरे को क्या भी वही निकालते डाउट हैं? था। इसका भी हाँ, सॉल्यूशन क्या निकालते उलमा है क्या बोले, अच्छा कपड़े मोड़ना अलाउड नहीं है ना पहचे, तो एक काम करो पैंट ही छोटा सिलाओ, गिड्डा सिलाओ। इतना अजीब अच्छा दिखता वो, जेल के कैदियों के जैसा दिखता वो। जेल के कैदियों में दिखाते थे नहीं, छोटे रहते थे खुद के पैर के नीचे, वैसे वो हम बना लेते कई कई स्ट्रिक्ट मुस्लिम जो है। हालांकि इसका कुछ भी लिंक ही नहीं है, शैतान तुम्हारा कंफ्यूज कर दिया, उलमा जो है मिसअंडरस्टैंड कर रही, इसके साथ उसका लिंक ही नहीं है। तुम जो है तकब्बुर का 1 लाख का कोई कपड़ा पहने तो तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं आना, और अगर वो तकब्बुर के कपड़े माने जाते तो वो कपड़े पहनना ही नहीं, चाहे वो पैर का पैंचा रहो या ऊपर का कुर्ता रहो या जीन्स रहो या कुछ भी रहो। ये मकसद को नहीं अंडरस्टैंड करके खाली लिटरल सेंस में ले लिया, लिटरल सेंस में, जो कि लिटरल सेंस में नहीं लेना, उसके गहराई को, उसके जज्बे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली ये बोले तो कोई सुनते नहीं, कोई खुद जाके हदीस पढ़ते नहीं, हदीस खाली रट्टा मार लेते, हदीस की तफसीर पढ़ते नहीं। ये अनफॉर्चुनेटली अरब कल्चर में फिर भी अंडरस्टैंड करते, मगर इंडिया पाकिस्तान में जो है अरबिक से उर्दू में ट्रांसलेट करके उसी तरीके से महदूद रह गए हम ना। जी जी सही बात है। अब सही बात एक है, और एक आखिरी सवाल था ना, आखिरी सवाल क्या था हाँ मैं वही बोल रहा था कि ये जो हम अगर किसी के जो बड़े लोग हैं जैसे अजमेर शरीफ या हाँ ये दरगाह पे। कहीं भी अगर दरगाह को जियारत को गए, खाली उनकी जियारत करने गए सब, तो उससे कुछ होता क्या? हाँ नुकसान है, हाँ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि कब्रिस्तान में जाया करो, कब्रिस्तान के पास उनके लिए दुआ किया करो, कब्रिस्तान में बैठा करो, अफसोस करो, मौत को याद करो, कब्रिस्तान की मिट्टी को देखो, गंदी मिट्टी को देखो, पूरे कीड़े मकोड़े, कचरा गिरा हुआ है, ये कचरे में अपने को जाना है। पूरे ऐशो आराम सोफा बेडा छोड़ दे के, एसी के रूम, महंगी कारों को छोड़ के ये गंदी मिट्टी में जमा होना है। इधर तुम्हारे जिस्म को डाल के फेंक देते, कितने बार बोले तो समझ में नहीं आता, मगर कब्रिस्तान की मिट्टी में जाके बैठे। मैं लिटरली इंडिया में रह तक हफ्ते में 1-2 बार कब्रिस्तान में जाके बैठता था, थोड़ा डर भी होता था। तो कब्रिस्तान एक मीनार मस्जिद के सामने जाके चैन से जरा बैठेंगे बोले तो हमें ऐसा कोई ना कोई आते रहते थे जाते रहते थे, मगर फिर भी उधर बैठता था मैं। तो बैठ के वो मिट्टी को महसूस करता था मैं, और जो है मिट्टी को हाथ में लेता था, और मैं अपने आप को बोलता था कि ये गंदी जगह में रहना है, 100 साल 1000 साल पता नहीं कितने, ये मिट्टी में कीड़े आ जाते, गंदगी है, साफ सुथरा नहीं है, बकरियां आ रहे, गोबर बकरियों के मेंढियां हैं, गंदा साफ सफाई भी नहीं करे, थोड़ी देर भी बैठना दिल नहीं बोलता। अपने घर में कचरा आ गया, थोड़ा सा पेपर के टुकड़े डाल दिए, थोड़ा जरा चिप्स के पैकेट क्या पाउडर गिर गया, तो अपन फौरन बोलते भाई जरा साफ करो भाई, बैठने लायक बनाओ भाई, कैसा बैठना हमना, ऐसा कपड़े हटाओ वो हटाओ बोलते। और इधर अपनी चलती नहीं, अपने को लाके अपने अजीज, अपने औलाद, अपने चाहने वाली बीवी
सब लाके कब्रिस्तान में डाल दे के चले आते हैं, वो कब्रिस्तान इतनी गंदी जगह है। तो ये इबरत की जगह है, पता चलता कि यहीं पे जाना है और हमारे को कोई चीज साथ नहीं लेके जाना है, और सिर्फ काम आने वाली चीज, ऐशो आराम देने वाली चीज खबर में सिर्फ अपनी नेकी है, अपनी कुरान है, जो इंसान की शक्ल में आके आपको बात करती है, कंपनी करती है, आपको सुकून देती है। तो काम आने वाली चीज सिर्फ कुरान है, और बाकी कोई चीज नेकी की चीज ही काम आने वाली है। तो इंसान बहुत मुतासिर होता है, और कई बार कई लोगों को कब्रिस्तान में अपने अजीज लोगों के इंतकाल के बाद में दफनाने के बाद उनको अपने आंखों से मिट्टी में डाल के, मिट्टी ऊपर डाल देने के बाद में मुतासिर हुए कई लोग। कई लोग बहुत चेंज हुए, कई लोग दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव फायदा हुआ। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में जाओ बोले, और उसके लिए इतना भी सवाब दिए कि क्योंकि इतना मोटिवेशन मिलता, बल्कि कि खबर के साथ जनाजे में 40 कदम चले तो भी कई नेकियां हैं, कई गुनाहों की माफी होती। कब्रिस्तान में उतारने के पीछे बहुत सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटिवेट करे थे, जाओ कब्रिस्तान में। और औरतों को भी जाने की भी इजाजत दिए बाद में, शुरू में नहीं दिए, मगर बाद में, क्योंकि औरतें फिर इमोशनल होकर रो लेते, मगर औरतों को भी इजाजत मिली लास्ट में कब्रिस्तान जाने को। तो इसके लिए कब्रिस्तान में जाना इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज है। मगर ये कब्रिस्तान और वो दरगाह में जमीन आसमान का फर्क है। दरगाह में क्यों जाना बोलते, पहले लोग आके बोलते भाई कब्रिस्तान को जाना अलाउड है ना, खबरों में जाना अलाउड है ना, इबरत की जगह। हाँ, मगर वो गंदे कब्रिस्तानों को, ये जो खूबसूरत महल के जैसे के जैसे जो दरगाह बने हुए हैं, वो कब्रिस्तान में नहीं आते। आप अजमेर जाके देखो कितना खूबसूरत है उसका डोम, इतनी चमक धमक, इतनी लाइटा, इतना वो, वहां पे जाके किसको खबर याद आती? तो इसके लिए वो मकसद इसको सर्व नहीं होता। पहली चीज, जो इंपॉर्टेंस देते, जो जस्टिफिकेशन करते, वो तो नहीं है। अब रही बात नुकसान क्या है, ठीक है भाई, फायदा नहीं है कुछ भी, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप वो सिस्टम को प्रमोट करें इनडायरेक्टली। आप तो जा रहे खाली बैठ के दुरूद पढ़ के आ जा रहे, हो सकता है आप जा रहे इबरत हासिल करके, मगर लोग क्या देखते, अरे मुदस्सिर भाई जैसे पढ़े लिखे समझदार नॉलेजेबल आदमी अगर दरगाह में जाके बैठ के आ रहे आधा घंटा जुमेरात को, तो मतलब उन्होंने हदीस पढ़े होंगे ना, उन्होंने रिसर्च करे होंगे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं बुजुर्गान दीन की ताकत को मानते होंगे ना, तो उन्होंने गए होंगे। तो हम भी जाना बोल के, आपके घर के पड़ोस में जो रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, जो अनपढ़ है, जिनको या फिर पीएचडी है मगर इस्लाम की मालूमात नहीं है, उन्होंने आपका टेका लेके, अरे मुदस्सिर भाई भी गए, अरे काशिफ भाई भी गए, अरे इतने पढ़े लिखे काशिफ भाई, इतनी बड़ी जॉब करते, अमेज़न में काम करते, इतने पढ़े लिखे, इतने मालूमात, और बात पॉलिटिक्स की करते, पूरे यूपी के इलेक्शन के बारे में बात करते, और जो है इतने बड़े आदमी, हम तो अनपढ़ है भाई, हम तो खाली दुकान में किराना की दुकान है, काशिफ भाई जा रहे तो हम भी जाना, बल्कि लोग जो है उसको सही समझते। इसलिए इस ट्रेडिशन को हम लोग रोकना चाहिए, इस तरीके को रोकना चाहिए, हम लोग नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पहली चीज, आप जाके क्या हासिल कर रहे हैं? आप कुछ नहीं हासिल कर रहे। अगर आपको दिख रहा है कि वहां जो ताकतवर चीज है, वहां के जो बुजुर्ग है वो आपके लिए दुआ कर रहे, आपका फायदा पहुंचाते, तो कल जो आयत पढ़े थे ना मुदस्सिर भाई, जी। रैंडम जो आयत निकालते, उसमें क्या बोले अल्लाह ताला, कहाँ है तुम्हारे दोस्त जो जिसपे तुम उम्मीद करते थे कि क़यामत के दिन तुम्हारे को मेरे सामने मदद करेंगे, सिफारिश करेंगे? कहाँ हैं वो लोग? नहीं दिख रहे। तो अगर आप समझ रहे कि क़यामत के दिन आपको अल्लाह के सामने सिफारिश करने वाले हैं, इन लोगों के साथ इसलिए मिल के रहना या इनके पास जाते रहना, तो ये आयत आपको क्लियरली खिलाफ बोल देती। तो इस पे कोई चांस नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप सोच से दुनियावी कुछ फैसला कर सकते, मदद कर सकते, आपको जॉब नहीं लग रही, जॉब लग रही बोल के जा रहे, तो यही तो है दरगाह पे जाने का असल ट्रेडिशन, और लोगों को फायदा भी होता। जॉब नहीं लग रही तो जाओ, आप अजमेर के दरगाह पे, होती जॉब लगती है आप, कैसा लगती मालूम, वहां पे जिन्नात बैठे हुए, वो सही लोग बात। आपको चाहते कि दरगाह के साथ कनेक्टेड हो। जो इंतकाल कर गए वो लोग तो कब्रिस्तान उससे निकल गए, जन्नत या दोज़ख के आलम में बरज़ख में चले गए, मगर वहां पे जिन्नात भूत बैठे हुए रहते, जिन्नात फटकाते, आपके काम करते, आपके दुआएं सुन के आपकी दुआएं दूर करते, काम करके देते आपको, जिसकी वजह से आप दरगाह पे भरोसा होके फिर कुछ तकलीफ आए तो उधर जाते। ऐसे 4-5 बार तकलीफ आए और दरगाह पे फायदा हुआ, तो फिर जानिमाज पे कम सवाल पूछते और दरगाह पे ज्यादा जाना शुरू करते। इसी वजह से तो लोग दरगाह जाते हैं। लोग दरगाह क्यों जाते? दरगाह पे बकरे क्यों कटते? वहां पे जो है नियाज क्यों होते? क्योंकि उनके काम पूरे होते वहां पे, और इसी वजह से वो लोग कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहते, अकीदा बन जाता,
कुरान हदीस की कितने भी आयतें पेश करो, उसका उनको फायदा नहीं होता। वो लोग वही चीज जो अपने माँ बाप को करते हुए है, हम भी करते बोलते, और उनको फायदे मिलते। तो ये सब फायदों का नुकसान हमको, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो जाना क्यों? उससे अच्छा कब्रिस्तान में चले जाओ, मुशराबाद की जो कब्रिस्तान है, बड़ी मस्जिद के 3 कब्रिस्तान है हाँ, छोटे-छोटे, वहाँ पे जाके बैठना। उधर नहीं जाना चाहिए, ये सिस्टम को प्रमोट होता और एक को देख के एक सीखते, और कोई दूसरा फायदा भी नहीं है। कुछ और फायदा है तो आप डिस्कस कीजिए, मगर मेरे को तो कुछ ऐसा फायदा नहीं दिखता। उल्टा क्या है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उल्टे सवाल, जिन्नात वगैरह जो है, अलग ही दुनिया जी। है वो। फिर छोड़िए, फिर कभी बात अगर करेंगे उसके बारे में। अगर अगर हमारे पहचानत वाले यहाँ पर रिश्तेदार है वगैरह तो उनके पास जा सकते हैं ज़ियारत करने। मतलब इंतकाल, आपके कोई अजीज के इंतकाल, हाँ, दफन है, तो वो दफन है। कब्रिस्तान है फिर वो। मगर अगर दरगाह की शक्ल ले लिए हुँ, और उसमें बहुत ग्लैमर है, लाइट लगे हुए, खूबसूरत है, तो फिर आप वो दरगाह को प्रमोशन कर रहे जैसी बात हो जाती है। तो अब अवॉइड करना चाहिए। मगर अब बहुत ही अजीज है, जैसे आपके अब्बा है, अगर आपके अब्बा दफन है तो फिर आपके अब्बा के पास तो जाएंगे आप। कोई अब जी। भाई है तो फिर आपको इमोशन है तो फिर आप जा सकते हैं। मगर बाकी के ये खानदान के बड़े बुजुर्ग पीर मुर्शिद निकले थे उन्होंने हमारे नस्ल के हैं, हमारे परदादा के परदादा होते, तो फिर वो पूरा कल्चर फिर गलत हो जाता। फिर वो हुँ, चीज हुँ। प्रमोशन में आ जाती, प्रमोट हो जाती, और इस चीज को जो है लोग देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। इसलिए फिर मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो फिर आज तीनों सवाल खत्म हो गए, फिर आज क्लास जी। रैप अप कर देंगे। हाँ, इंशाल्लाह फिर ठीक है, कोई मंडे अगर मुलाकात किसी को कुछ करेंगे। पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछना है। नहीं, इसी के बारे में। स्टॉप कर दूँ? हाँ, स्टॉप कर दीजिए।